اس کے دوسرے باب کی پہلی 3 آیتوں کو دیکھیں گے۔ رات کو جو پیغام تھا وہ یقیناً جو آئے تھے، بہت ایک بڑی جماعت یہاں جو تھی، ان کے لیے تھا کہ خوشخبری، گڈ نیوز، اور وہ گڈ نیوز، خوشخبری جو ہے وہ ڈیوائن پرسنالٹی، الہی ذات خداوند یسوع مسیح، ہاللیلویہ، اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر کیا کی جا رہی تھی؟ پردہ ڈالنے کی کوشش۔ اور پردہ اس لیے تاکہ خوشخبری مٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن اسی ڈیوائن پرسنالٹی نے، الہی ذات نے ہیکل کے پردے کو چاک کروا دیا اپنی قربانی کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ اس نے اپنے کفارہ کے وسیلہ سے اس پردے کو چاک کروا دیا جب اس نے وہ آواز لگائی کہ تمام ہوا، اور لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک کیا ہو گیا؟ اس خوشخبری پر پردہ نہیں ڈلا، بلکہ وہ حضوری کیا ہے، ہیکل سے باہر آ گئی، اور آج وہ ہم سب کے بدنوں کے اندر ہے۔ آمین۔ اور بائبل یہ کہتی ہے تمہارا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ سو آئیں آج ہم مزید اسی الہی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی چند ایک لوگوں کے بارے میں اور اس خوشخبری کے بارے میں سیکھیں۔ دوسرے باب کی پہلی 3 آیتیں ہیں، یہاں لکھا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مجوسی یہ ایک مذہب ہے اور ایران میں یہ موجود تھا، اور یہ لوگ جو تھے ستاروں کی پرستش کرنے والے، ستاروں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے تھے، تمام باتوں کو جان لیتے تھے۔ یہ اچھی طرح واقف تھے اسٹرالوجی سے، ستاروں کے علم سے، یہ بڑے اچھی طرح۔ آج بھی وہ باتیں اکثر کوئی ایسے لوگ کرتے ہیں ستاروں کے بارے میں، یہ نالج رکھتے تھے، علم رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ستارے کیا باتیں کہتے ہیں، اور ستاروں کی یہ جو پرستش تھی، یہ اس لیے یہ ان کے کلچر میں، ان کے شاید جو مذہب کے اندر جو تھا، یہ اس کو مانتے، اس کی پرستش کرتے ستاروں کی، اور انہی کے مطابق شاید ان کا چلنا پھرنا اور رہنا تھا۔ بعض لوگ تو
یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجوسی تھے یہ الگ الگ کسی شاید جگہ سے آئے تھے. کوئی یہ کہتے تھے کہ یہ ایک مصر سے تھا, ایک ایران سے تھا اور ایک ہندوستان سے تھا. لیکن جب ببلیکلی طور پر دیکھا جائے تو لکھا ہے وہ پورب سے, پورب یعنی مشرق سے. جب مشرق کی بات کی جاتی ہے تو یروشلم جو ہے وہ اس کے جنوب کی طرف ہے. تو وہ مشرق کی طرف سے آئے جنوب میں یہ کہتے ہوئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو کیا ہے, یہ کئی مجوسی تھے. تعداد ان کی کنفرم 3 نہیں تھی, لیکن گفٹ 3 ہی تھے. ہو سکتا ہے 3 گروہ ہوں یہ بڑے بڑے, یا 3 ہوں لیڈر ہوں, 7 ان کے 1-1, 2-2, 7 جو ہیں وہ اسسٹنٹ ہوں. بائبل میں کوئی حتمی بات نہیں ہے جی, کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے, لیکن بائبل میں یہ حتمی بات ہے کہ وہاں پر واضح طور لکھا ہے کئی مجوسی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو یہ مجوسی آئے اور یہ کہتے ہوئے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ ہیرودیس بادشاہ, جو اس وقت یروشلم پر, یہودا پر کیا تھا, بادشاہی کر رہا تھا. جو در حقیقت جو تھا یعقوب کے بھائی جو ہے عیسو, جسے ادوم بھی کہا جاتا ہے, یہ اس کی نسل سے تھا. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ اس کی نسل سے تھا اور اس کو اسرائیل پر, یہودا پر بادشاہی کرنے کا حکم نہیں تھا. جب بتایا گیا, پوچھا گیا کہ بادشاہ کہاں ہے, وہاں لکھا ہے وہ گھبرا گئے. گھبرا کیوں گیا جی؟ غیر قانونی تھا, یہ غیر قانونی وہاں ان پر بادشاہی کر رہا تھا. یہ تو سامریا کا تھا اور علاقہ یہود کا تھا. یہودیوں اور سامریوں کی آپس کوئی میل جول نہیں تھی. یہودی جو سامریوں کے ساتھ ویسا تعلق نہیں رکھتے تھے, کیونکہ جب یسوع مسیح ایک سامری سے پانی مانگتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیا کرتا ہے, پانی مانگتا ہے. سلیمان بادشاہ کی حکومت کے بعد یہ بادشاہیاں بٹ گئی. 10 بادشاہیاں ایک طرف ہو گئی, 2 بادشاہیاں, 2 قبیلے ایک طرف, 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے, اور وہ 10 قبیلے ایک بادشاہی ہو گئے, اور یہ 2 قبیلے ایک بادشاہی ہو گئے. یہاں یہودا کی بادشاہی چل پڑی اور دوسری طرف شمالی طرف جو تھا, مشرق کی طرف, وہ اسرائیل کی بادشاہی جی. وہ 10 قبیلوں کے اندر جتنے بادشاہ آئے, اور سے سنیے گا اس بات کو, یہ نالج کی باتیں ہیں, جتنے بادشاہ آئے وہ سب خدا کی نظر میں گناہگار تھے. یہودا کے بھی بادشاہ آئے, لیکن اس یہودا کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا, کیونکہ یہ داؤد کی نسل تھی, داؤد کی اصل تھی, اس لیے یہاں ان کے ساتھ جو وعدہ تھا کہ میں تیری کیا ہے بادشاہی کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا. ہاللیلویا. اور میں جب ابھی اس حوالے کو ابھی دوبارہ پڑھ رہا تھا, خدا کے روح نے مجھے ایک بات چیز جو ہے وہ گائیڈ کی. یہاں جو لکھا ہے پہلی آیت میں, جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں, کس کے بادشاہ ہوئے, یعنی بادشاہ کا زمانہ. اب غور سے سنیے گا جی اس بات کو,
जितने भी बादशाह आए उनका जमाना था, लेकिन एक बादशाह ऐसा आया जिसकी बादशाही अब तक कायम है। हालेलुया, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, जोरदार तालियां अपने खुदा के लिए। उसकी बादशाही कभी ना मिटने वाली है। बात यही है ना जी, ऊपर अगर हम इसको देखें तो यहां पर जो बातें कही गई हैं बाइबल के ऊपर देखें तो, और जब पुराने अहद के अंदर ये साया की मार्फत वो नबूवत को देखें तो वहां पर भी यही लिखा है कि खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त है, और दाऊद के साथ ये वादा था कि तेरी नस्ल से एक ऐसा बादशाह बर्पा होगा जिसकी बादशाही कभी खत्म ना हो। हालेलुया, और वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, खुदावंदों का खुदा, मेरा और आपका मनजी यीशु नासरी है। हालेलुया, जोरदार तालियां उसके। सो जब उस बादशाह को, जिसका एक जमाना था हेरोदिस, वो सिफारशी तौर पर जब आया, बादशाही कर रहा है जी, हुकूमत कर रहा है। अब एक गैर कौम का बंदा आके कह रहा है जी यहूदियों का बादशाह कितने। लेट्स सपोज आपके पास अभी बाहर से गैर ईमानदार आदमी आकर के, पास्टर कौन है, तुसी डायरेक्ट पकड़ना मेरे को लेना है जी पादरी। वो भी शायद इसी तरह कुछ हुआ यहूदियों के बादशाह के पास, क्योंकि मौजूदा बादशाह जिसका जमाना चल रहा था उसके पास शायद वो चले गए, और वो समझे कि बादशाह जो है वो कहां होगा, बादशाह के घर में होगा। तो वो वहां चले गए और वहां जाके उन्होंने पूछा तो वो परेशान। फिर लिखा है कि उसने आगे जो बातें हैं कि वो मालूमात, नॉलेज लेना चाह रहा था। ये ऐसा नहीं है जी कि यहूदी 21 दिन च आए, 21 रात च आए ते ओथे आए ते उन्हें पूछया, उन्हें के पूछया जी जाओ जी, अच्छा चलो जाओ, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि सबसे पहले हेरोदिस ने उन्हें मेरे नजदीक अपने किसी गेस्ट रूम में या गेस्ट हाउस में रखा, उन्हें उनकी खिदमत की होगी और मसीह यीशु के बारे में पूछा होगा। ठीक ठीक के कब सितारा नजर आया, वो कौन सा दिन, कौन सा वक्त था, कैसा निशान था, और फिर उसने एक क्या है जो काहिनों की तंजीम है मौजूदा दौर के, उनको बुलाया और क्या किया जी, उनसे पूछा कि कहां लिखा है, कहां उसके बारे में नबूवत हुई कि वो कहां पैदा होगा। और उन्होंने बताया जो मीका की किताब का हवाला है, मीका 2 बाब का, वो वहां से हवाला उन्होंने वो कोट किया होगा कि अगरचे ऐ बैतलहम तू सबसे छोटा है तो भी तुझ में से एक क्या है रसूल खादम बर्पा होगा। तो वहां का ये हवाला है। तो वो हवाला जब कोड हुआ, वहां एक बादशाह बर्पा होगा, तो वो हवाला जब कोड हुआ तो मे भी इसमें शायद वक्त लगा होगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। उसके बाद उन्हें रवाना किया और मजूसी जो है वो वहां से निकले। मजूसियों का ये सफर कोई 2 दिन का नहीं, कोई 1 रात का नहीं, या टैबलो जेडे बच्चे करते हैं 1 घंटे का नहीं। ये 1500 मील का सफर था, यानी यहां से लेकर कराची तक का सफर था। और मजूसियों ने ऊंटों पर और पैदल सफर करके यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। और गौर से सुनिएगा, इनका ये जो सफर था, इनकी जो ये सारी एफर्ट थी, ये इनकी जो सारी एफर्ट थी, इसमें तकरीबन 3 माह इनको लग गए। कितने माह जी? तकरीबन कहा यह जाता है कि 3 महीने इनको ये लग गए, और 3 महीने के अंदर अंदर ये वहां पहुंचे। और उस वक्त यीशु मसीह चरनी में नहीं था। यीशु मसीह और वो सारे लोग, अगर हम ये आगे जाके पढ़ते हैं, यहां पर अगले तरफ
10वीं आयत दूसरे बाब की, और लिखा है कि वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर, अब वो सराय में रह नहीं रहे, बल्कि अब वो किसी प्रॉपर घर के अंदर शिफ्ट हो गए हैं यीशु मसीह नासरी को लेकर। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम, तो वहां पर वो शिफ्ट हो गए, और वहां वो क्या है, वो उसको देख कर लिखा है निहायत खुश हुई। हालेलुया, हालेलुया। सो मैंने ये कहा कि इस सारे प्रोसेस में कमोपेश 3 माह लगे, और मजूसियों ने रात को सफर किया, दिन को सफर नहीं किया जी, ये बात याद रखें। दिन को तारे नजर आते कईयां ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नजर आते। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिन को सितारे क्या है जी, नजर, तो फिर वो किसकी रोशनी में थे, सितारे की। वो सितारों की रोशनी में थे, और सितारा उनको लीड कर रहा है, वो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। फिर सुबह हो गई, सो गए, फिर क्या है जी, सारा दिन रेस्ट करने के बाद फिर लीड कर रहा है, वो फिर जा रहे हैं। अब जब यरूशलेम में पहुंचे, उन्होंने वहां की चमक दमक देखी, महलों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की चमक दमक देख ली। अब क्या हुआ जी, अब उनके नजदीक जो है वो क्या है कि यही एरिया है जहां यहूदा का बादशाह होना चाहिए। और ये उनकी एक, मैं कहूंगा कि गलती भी थी। किस तरह गलती? इस तरह थी कि इस सबब से 2 साल के जितने बच्चे थे उस दौर के अंदर, यीशु मसीह के बाद जो हुक्म जारी हुआ, यीशु मसीह के पैदा होने के बाद 2 साल के बच्चों तक के वो कत्ल वो मजूसियों के सबब से हुआ। ऐसा ही है ना जी, क्योंकि अगर वो बादशाह के पास ना जाते, उससे ना पूछते, तो ये कभी भी नहीं होना था। ये उनकी डिट्रैक्ट होने की वजह से है। अगर वो सितारे की रोशनी में रहते, अगर वो सितारे की वो लाइट के नीचे नीचे चलते, तो फिर वो क्या है, वो फौरन पहुंच जाते, उनको ये मसला कभी दरपेश ना आता, वो कभी इस तरह डिट्रैक्ट होकर बहुत सी जिंदगियों को वो हलाक ना हम देखते। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती है, मेरे नजदीक ये इसलिए भी है ताकि यहूदा के अंदर, यरूशलेम के अंदर ये धूम मच जाए, ये बात फैल जाए कि उनका बादशाह, उनका मसाया, उनका निजात देने वाला, उनका रिहाई देने वाला वो क्या है, दुनिया में आ गया है। हालेलुया। वो इसलिए भी है, और ये खुशी की बशारत है, ये ब्लेसिंग उन तक भी पहुंच गई, मजूसियों के वसीला, गैर कौम के वसीला यहूदियों को पहुंच गई कि जीसस क्राइस्ट जो है वो क्या है, आ गया है। हमने उसका सितारा देखा है जी, वो परेशान हो गए। ओ माय गॉड, होना तो खुश चाहिए था, लेकिन यरूशलेम वाले भी क्या हो गए जी, परेशान हो गए, क्योंकि वो फॉल्स लीडर के साथ, गलत लीडर के साथ शायद वो भी अकोमोडेट हो गए थे, वो आदी हो गए थे गलत लीडर की रहनुमाई में रहने की। तो वो लिखा है कि वो सब घबरा गए। लेकिन जब यहां पर उनको ये सारी बात पता चली, और उसके बाद क्या है जी, वहां पर उन्होंने अगली आयत में ये पढ़ूंगा, 11वीं आयत लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां के पास देखा, और उसके आगे घिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। दूसरा रास्ता,
کس کے وسیلہ جی ہدایت دیکھی انہوں نے؟ ہے جی نہیں فرشتے نہیں سمجھی کدے وسیلے؟ یہ سننے سمجھنے والی بات ہے. کس کے وسیلہ جی؟ خواب کے وسیلہ. خواب نظر آیا اور خواب میں ہدایت کیا پائی گی کہ کیا ہے جی دوسرے رستے سے ہیرودیس کے پاس نہیں ہوتا. کتنے لوگوں کو خواب آتا ہے؟ کیسے خواب آتے ہیں؟ جب سو جانے ہیں وہ تو خواب آنے نہیں، لیکن کیسے مطلب کس طرح کے؟ کس طرح؟ یہ بالکل ٹھیک کہا بھائی نے. خواب ہم سب کو آتے ہیں. اگر کوئی بندہ ڈرائیور ہے تو کوئی چلو شکر ہے. اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس کو کیا خواب آئے گا؟ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. خواب میں بھی یہی ہوگا نا. اگر کوئی مکینک ہے اس کو بھی خواب میں کیا آئے گا؟ میں کوئی کام کر رہا ہوں. کوئی اور اس طرح کا کالج میں ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کو کالج کے آئیں گے. آفس کا ہے تو وہ آفس میں. یہ میں آپ کو خواب اور رویا کے اندر اب فرق نظر بتا رہا ہوں. خواب آپ کے کام کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں. جب آپ بہت تھک جاتے ہیں یا کبھی آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہن بھی لیے ہیں، تب بھی آپ کو کچھ ایسے خواب آئیں گے جس میں آپ اپنے آپ کو گھٹا تنگ فیل کریں گے. لیکن کچھ ایسے خواب ہوں گے آپ کو سوتے میں آئیں گے جو آپ کی رویا ہوں گے. ہاللیلویا. اور وہ ہدایت ہوگی اور اس کے لیے آپ بے چین ہوں گے. اس کلام کے وسیلہ سے آپ پریشان ہوں گے. خواب کے اندر بات ہونا یہ بڑا خاص ہے. یعقوب کو خواب آیا. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 38ویں باب کے اندر دیکھیں تو وہاں اس کو کیا خواب آیا، اور یہ وہاں اس کے بعد میں اور آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اور لوگوں کو کیا خواب آئے. پیدائش 28واں باب اس کے 10ویں آیت سے 17ویں آیت 28 سوری میں پڑھتا ہوں. اور یعقوب بیت سبا میں سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا. اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو. اب دیکھیں جی یعقوب کا کام، سر کے نیچے کیا رکھا ہے؟ سونے کے لیے کیا رکھا ہے جی؟ میدان میں ویرانے میں وہ گیا، وہ وہاں رات ہو گئی اور وہاں اس نے کیا کیا کہ وہ پتھر رکھ لیا اور سو رہا ہے. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے. ایک سیڑھی ہے، وہ سٹریٹ نہیں جی. جو سیڑھی ہے یہ سپرنکل شیپ، جو راؤنڈ شیپ ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی ایسی وہ لوہے کی سیڑھیاں جو بنی ہوتی ہیں. یہ اس طرح کی گول راؤنڈ شیپ پرانے وقتوں میں یہ زیادہ چلتی تھی. آج تو یہ سٹریٹ سیڑھی ہے نا جی. تو یہ گول سیڑھی ایک اس نے اس طرح کی دیکھی. اور پھر کیا لکھا ہے کہ جس کا جو ہے نا زمین پر کھڑی ہے اور سر کہاں ہے؟ آسمان پر. اور خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اترتے ہیں اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے، میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. ہاللیلویا. میں یہ ٹیچ کر رہا ہوں خواب جو آتے ہیں
ये आम चीज नहीं है। ख्वाबों का आने का मकसद है। मजूसियों ने ख्वाब देखा है, मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने टीच किया और यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ते ने आकर क्या किया है, टीच किया है। उसने ख्वाब देखा है, बादशाह को ख्वाब नजर आया और यूसुफ को उसकी ताबीर, ये पुराने अहद का बादशाह की बात मैं कर रहा हूं, उसको ख्वाब नजर आया और यूसुफ को उसकी क्या हुई, ताबीर नजर आई है। सो ये बेमायनी बेमकसद ख्वाब नहीं आते, इनके पीछे प्रॉपर विजन है, इनके पीछे प्रॉपर कलाम है। और इसको जो नजर आया है वो सीढ़ी लगी है, सीढ़ी जमीन से आसमान तक है और आसमान का खुदा, हमारा खुदा वहां खड़ा है और वो कलाम कर रहा है, वो बात कर रहा है। फरिश्ते मूव हो रहे हैं, फरिश्ते अप एंड डाउन हो रहे हैं। अब गौर से सुनिएगा, फरिश्ते जिसके पास आते हैं वो आम इंसान नहीं है। रोया जिसके पास आती है वो आम इंसान नहीं है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से खास है। उसके पास खुदा का डायरेक्ट कलाम आता है। हालेलुया। उसके पास खुदा का डायरेक्ट कलाम आता है। खुदा उसे डायरेक्ट अप्रोच करता है, खुदा उससे डायरेक्ट बात करता है। वो एक खास मंसूबे के तहत अपनी रोया में, और ये याकूब के अय्यूब की किताब के अंदर लिखा हुआ है, 14वें बाब की उसकी 31-32वीं आयत है कि खुदा बात करता है ख्वाब में, रोया में, एक बार दो बार। ख्वाब इंसान उसका ख्याल करे या आप ख्याल करें या ना करें, लेकिन खुदा ख्याल करता है, वो बात करता है। और अगर हम उससे आगाह हो जाएं और उस ख्वाब रोया के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेवल पर ले आए, ठीक ठीक चलना शुरू कर दें, जैसे मजूसियों ने किया कि उन्होंने ख्वाब में हिदायत पाई और क्या हुए, वो चले गए। ये खुशखबरी उन तक पहुंची, उन्होंने उस खुशखबरी को ले लिया और फिर उसके बाद खुदा अब क्या है, उस कलाम को उनके साथ कर रहा है। खुशखबरी आप तक पहुंची, आपने खुशखबरी को ले लिया, अब खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है। और ये खास कलाम, ये खास बात यही है कि खुदावन चाहता है कि किसी की हलाकत ना हो, क्योंकि उसने अपना बेटा इसीलिए भेजा है कि दुनिया उसके बेटे के वसीला से मौत से निकलकर, गुनाहों से निकलकर, बदरूहों से निकलकर, लाचारियों से निकलकर, तंगदस्तियों से निकलकर, बेबसियों से निकलकर, जमीनी जिंदगी से निकलकर आसमानी जिंदगी में आ जाए और वो आसमान के शहरी हो जाए। जमीन को वो कहे कि हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं, आसमान हमारा वतन है, हमारे रहने की जगह आसमान है, हमारे लिए यरूशलेम है आसमान पर, हमारे लिए वहां सोने की सड़कें हैं, हमारे लिए वहां उसने अपने हसात हमारे लिए घर बना रखे हैं, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हो वहां तुम भी हो। हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदा के लिए बजाएं। ये छोटा क्रिसमस नहीं, ये छोटी बात नहीं है, ये हर कौम, हर बशर के लिए, हर नस्ल के लिए है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्शा, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और अपना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए तो खुशखबरी पर ईमान लाए। खुशखबरी इसीलिए है, मसीह इसीलिए है कि आप उस पर क्या करें, ईमान लाएं, उस डिवाइन पर्सनैलिटी पर। और जो पर्दा डाल रहे हैं, जो उसको छुपा रहे हैं, जो इस कोशिश में है कि क्रिसमस, क्राइस्टमस, मैंने रात को भी ये बताया, मैं आपको भी टीच करता हूं, क्राइस्ट के मायने मसीह, और मैस के मतलब दो मतलब है, एक बड़ा है और एक है अनॉइंटिंग वन, यानी मसाशुदा। मसीह जो मसाशुदा है। और जब आप कहते हैं मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, तो आप
ये कहकर इस दिन को मना रहे होते हैं कि हमारे लिए मसीह जो मसा शुदा है वो आया है, आपको मुबारक हो। हालेलुया। आप दूसरे को ये कह रहे होते हैं मसीह जो मसा शुदा है, जो हमारे लिए आया है, वो आपको क्या है? मुबारक हो। जो मेरी निजात है, जो तेरी निजात है, वो आपको क्या है? मुबारक हो। ऐਵੇਂ ही नहीं बोलते रहना मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक, ऐਵੇਂ ही नहीं। मैं ये कह रहा था कि लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, मुंह च दंद भी नहीं, तो फिर भी टू यू लगे रहने ने, तो पता ही नहीं कि किस गल दा टू यू पूछा जाए क्रिसमस की है ते इशारा कर देंगे ऐ वे क्रिसमस, ते फिर पूछा जाए की है ऐ वे क्रिसमस की है, ऐ डेकोरेशन है क्रिसमस। कोई पूछता ही है ना क्रिसमस की है, ऐ भी साडी ईद है क्रिसमस। अरे भाई क्रिसमस का बताएं, क्रिसमस यानी जो है वो यीशु मसीह है, क्राइस्ट द अनॉइंटिंग वन, मसीह जो मसा शुदा है, वो निजात दहिंदा है, वो जो हमारे लिए मुजस्सम होकर आया है। उसने कोई अवतार नहीं लिया, उसने कोई रूप नहीं लिया कि पहले प्यो दे रूप च सी ते फिर पुत्र दे आ गया, या देवी देवते और शक्लां बदलदा पे। नो, ऐसा नहीं है। वो बाप में से निकला और दुनिया में आया है। उसने कहा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। वो उतार नहीं है, वो कोई शक्ल नहीं उसने चेंज की है, बल्कि हकीकतन हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है और सल्तनत उसके कांधे पर है। उसकी बादशाही का कभी खात्मा ना होगा, बल्कि वो बहुत जल्द अब वापस आने वाला है। 2000 साल पहले तो वो गुनाहों की माफी के लिए आया था, लेकिन अब जब वो आएगा तो वो रास्तबाजों के लिए आएगा और वो गुनाहगारों को छोड़ जाएगा और फिर वो उनकी अदालत के लिए खड़ा होगा, क्योंकि उसने कहा है कि बाप ने अदालत का सारा काम मेरे सुपुर्द किया हुआ है और वो उनकी अदालत करेगा। और गुनाहगार को जो मतवातर गुनाह करने वाला है उसकी बालदार खोपड़ी को छीन देगा, क्योंकि उसके हाथ में जो उसका छाछ है वो अपने साथ लिए फिर रहा है। वो उसी के मुताबिक फौरन से उसका हिसाब किताब करेगा और वो माफी ना देगा। और वो रहम जो कर चुका है अपने कफारा के वसीला से, अब दोबारा नहीं है, वो दोबारा कफारा नहीं है। ना कोई और बेटा आएगा, ना कोई और इकलौता आएगा, ना कोई और मुनज्जी आएगा, बल्कि मुनज्जी हमारा यीशु नासरी आज से 2000 साल पहले चरनी में आ चुका है। वो मुजस्सम हो चुका है, वो हमारे लिए दुनिया में तवल्लद हो चुका है। हालेलुया। हम उस पर ईमान लाए हुए हैं, हम उसके सामने आए हुए हैं। अब हमें उसके हजूर शुक्रगुजारी करना है, दिल से उसे कबूल करके क्या करना है? शुक्रगुजारी करना है और इकरार करना है। ये कोई उतार नहीं है, ये उतार नहीं है, रूप चेंज नहीं है जी। मैं रात को ये भी टीच कर रहा था कि उतार नहीं है,